I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. अगर वो एक इंसान के अंदर आ जाए, जैसे कहा जाता है ना कि अगर एक इंसान की एंड्योरेंस बहुत स्ट्रांग है, सो दैट पर्सन डेफिनेटली विल गोइंग टू टच दी ज़ेनिथ. वो पक्का ऊंचाइयों को छुएगा. क्यों? एंड्योरेंस का मतलब है कि इसकी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेमिना बहुत है इसमें, और फिजिकल स्टेमिना, और दोनों ही हमें पता है, बड़ी सिंपल सी बात है कि होने जरूरी है. तो आज बात करते हैं कि इस लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन को कैसे इन्वोक किया जाए. सुना तो हमने हुआ ही है, पता तो हमें भी है मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, बट इसको इन्वोक कैसे करना है. तो किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है, a wise man has said that if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. अब ये जो तीन चीजें हैं इसमें, मनी, हेल्थ एंड कैरेक्टर, सो इन तीनों में से जो बाद वाली दो चीजें हैं, वेल्थ को छोड़ दो, पैसे को छोड़ दो, हेल्थ एंड कैरेक्टर, ये दोनों इनडायरेक्टली, इन दोनों का समन्वय ही आपका एंड्योरेंस की तरफ आपको लेकर के जाता है. कैसे? इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट. तो हेल्थ से क्या आता है? आपका फिजिकल स्टेमिना, आपकी बॉडी की कितनी स्ट्रेंथ है, कि हाँ आपकी बॉडी में बड़ा स्टेमिना है, आप थकते नहीं हो, आप कहते हो कि जी मेरी बॉडी बहुत फिजिकली आई एम वेरी फिट. और जो दूसरी चीज, लास्ट चीज जो मैंने बोली, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. व्यक्तित्व अगर आपका चरित्र जो है, कैरेक्टर, उसका बहुत बड़ा रोल है मेंटल स्ट्रेंथ में. मैं अभी आऊंगा कैसे है, बट ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इन दोनों चीजों को दर्शाते हैं. तो एंड्योरेंस को इन्वोक करने के लिए अगर हमारे को ये पता लग जाए कि कैसे मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल स्टेमिना को अपने अंदर बनाना है या इन्वोक करना है, और फिजिकल स्टेमिना को कैसे इन्वोक करना है, तो एंड्योरेंस अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का समन्वय ही एंड्योरेंस है. तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ की, मेंटल स्टेमिना. अब नाउ व्हाट इज मेंटल स्टेमिना? आई मस्ट टेल यू, आप लोगों को अगर इस चीज के लिए आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, बट ये जो कुछ रीसेंट मेडिकल साइंस के जो कुछ पास्ट, अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे नजर मारेंगे, अगर कुछ आंकड़ों पे नजर मारेंगे, तो आज की डेट में जितनी भी हेल्थ एलिमेंट हैं लोगों को, यानी कि जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, यू वोंट बिलीव वो एक्चुअली में उनको फिजिकल कभी थी नहीं. तो वो आई कहां से?
जितने लोगों को 100 लोगों को अगर कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनमें से 95% लोगों को वो पहले एक्चुअल में मेंटल प्रॉब्लम थी। वो मेंटल कहीं ना कहीं मेंटली उनके माइंड में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उनकी, विच गॉट कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल। इसलिए मैंने एंड्योरेंस में मेंटल स्टेमिना और मेंटल वेलबींग को पहले उठाया है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल से। उसका एक एग्जाम्पल भी है बड़ा छोटा, आपने बड़े सारे देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल है एक आपका स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स फिजिकली बिल्कुल खत्म था बॉडी, लोगों ने तो ये भी कह दिया था यू कैन नॉट सर्वाइव, बट ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिजिसिस्ट, जिसकी थ्योरीज हर जगह पे पढ़ी जाती हैं। ब्लैक होल को उसने पूरा का पूरा समझाया। आप हमारे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, एक स्पोर्ट्समैन है जिसका नाम है, जो बहुत छोटे रूरल इंडिया से आती है, अरुणिमा। आपने शायद देखी भी होगी। और उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि उसको किसी गैंगस्टर्स ने ट्रेन से उठा के फेंक दिया, उसकी दोनों लातें चली गई। 10 घंटे तक वो रेलवे स्टेशन पे पड़ी रही। दोनों लातों ना होने के बावजूद भी उसने डिटर्मिनेशन करी और 2 साल के अंदर उसने माउंट एवरेस्ट को, शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एंथुजियास्टिक माउंटेनर। 2 साल के अंदर पूरा माउंटेन क्लाइम कर लिया। सो द आइडिया इज मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं पहले मेंटल की बात कर रहा हूं। तो जो मेंटल स्टेमिना है, 95% लोगों को मेंटल एलिमेंट था विच गॉट कन्वर्टेड इनटू फिजिकल। तो कहीं ना कहीं ये आपको इस चीज का भी, इस लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको, अगर आप मेंटल एलिमेंट की को समझ जाते हो कि उससे कैसे अपने आप को निकालना है या हाउ टू हैंडल इट, तो कहीं ना कहीं आप उन सारी प्रॉब्लम से जो लोगों के साथ जूझ रही हैं, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, अनईजी, नॉट सेटिस्फाइड विद लाइफ, या चीजों से तंग हो जाना, आप कहीं ना कहीं उससे भी निकल पाओगे। तो अगर हम बात करें मेंटल एलिमेंट या मेंटल वेलबींग, सो व्हाट इज द रीजन मेंटल स्टेमिना क्यों नहीं है लोगों में, या व्हाई पीपल आर नॉट सो मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड हाउ टू इन्वोक दिस, इसको कैसे इन्वोक करना है हमारे साथ। इसके लिए मैं आपको एक फिलॉसफी अगर हम करने पे आए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल फिलॉसफी बन सकती है, बट मेरा उद्देश्य आपको फिलॉसफी से ज्यादा अपना खुद का रियल टाइम एक्सपीरियंस बताने का है, और रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ टू गिव यू फ्यू टूल्स जिससे आप इसको जेन्युइनली इन्वोक कर सको। तो अगर मैं मेंटल वेलबींग की बात करूं तो हर किसी की तरीके मेरे साथ भी कभी ऐसा ही होता था, बीइंग इन कॉलेज, या आप ये कह लीजिए जब मैंने कॉलेज स्टार्ट करा था, कि बड़ी बड़ी चीजें जब आपके अपने हिसाब से नहीं होती थी, या मैं कुछ प्लान करता था और वो नहीं हो पाता था, या मैं सोचता था नहीं हो पाता था। एंड इट डज नॉट इवन अप्लाइज ओनली टू योर करियर, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ, इवन रिलेशनशिप। आपने सोचा, आजकल यंगस्टर्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रेकअप हो जाता है तो उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है। जो लोग थोड़ी तैयारी करके रहते हैं, किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उनके साथ ये दिक्कत है। मान लो जॉब में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिक्कत है। तो कहने का मतलब है मेंटल वेलबींग जो है वो कहीं ना कहीं इट इज कमिंग ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, द सोर्स इज मल्टीपल रीजन, बट सही मायने में उसकी सोर्स क्या है, ये सारी उसकी सोर्स नहीं है, ये तो सारे उसके कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट जिनको हम सोर्स माने बैठे हैं कि आपका ब्रेकअप हो गया, करियर में आप फेल हो गए, पेपर में, जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सारे के सारे आपके मेंटल एलिमेंट्स या मेंटल प्रॉब्लम के कैटलिस्ट हैं। व्हाट इज द सोर्स? सारे मेंटल एलिमेंट्स की सोर्स जो है ना, आप सारी मेंटल बीमारियों की सोर्स वो कौन है? वो आप खुद हैं। खुद। अब खुद कैसे हैं? सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, और यही मेरे साथ कुछ होता था। कैसे होता था कि एक बारी मेरे साथ कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ, और वो सिनेरियो ये था कि जब मैंने 10th के बाद मेरा
इंडियन आर्मी की मुझे ज्वाइनिंग मिली और इंडियन एयरफोर्स 2 बारी एसएसबी क्रैक करने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली मेडिकल की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो मुझे बड़ा आई फील वेरी शैटर्ड। तो जब मैंने इतना शैटर्ड फील करा तो व्हाट वाज दैट टूल जो मेरी मेंटल एलिमेंट को मैं खुद ही ओवरकम करके मेंटल स्टेमिना में बना पाया, और यही सब लोगों के साथ अप्लाई होता है सारी जगह पे। सो ऑल मेंटल एलिमेंट्स इज विद अस। ये मैंने कैसे रियलाइज करा? देखो, बहुत सिंपल सी एक चीज है, एंड द सिंपल आइडिया इज इफ यू फील वेरी वेरी गुड अबाउट समथिंग, यू गो फॉर अ पार्टी विद योर फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जाते हो, आपको बहुत मजा आता है, यू एंजॉय, यू स्पेंड टाइम विद योर गर्लफ्रेंड, आपको मजा आता है, आप कहते हो यार आई एम एंजॉयिंग। यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, आप कहते हो यार मुझे बड़ा मजा आता है। आप बड़े टाइम बाद मिलते हो अपने ओल्ड फ्रेंड से, आप कहते हो यार बड़ा अच्छा लगा। अब ये अगर आप ध्यान से समझना, चारों स्टेट जो मैंने आपको दिए, 4 एग्जाम्पल, चारों में आपको अच्छा लगा, बट अच्छा लगने के ये सारे कैटलिस्ट थे। अच्छा कहां से लगा? अच्छा आपको अंदर से लगा। समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं? अच्छा मुझे अंदर से लगा। 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो ये चारों कैटलिस्ट थी, बट अच्छा तो मुझे अंदर से ही लगा। इट वॉज माई इनवर्ड एक्सपीरियंस, इट वॉज माई ओन एक्सपीरियंस। 4 डिफरेंट परिस्थितियों ने मुझे एक एक्सपीरियंस दिया, बट वो एक्सपीरियंस कहां था? मेरे पास था, मेरे अंदर था। सेम अप्लाइज व्हेन वी फील शैटर्ड, व्हेन वी फील शैटर्ड ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, जैसे मैंने आपको बताया, करियर फेल्योर, रिलेशनशिप, फैमिली प्रॉब्लम, एनीथिंग। ऐसे ही ये सारे कैटलिस्ट हैं, और वो आपको अंदर से दुखी, डिप्रेस्ड होना, मुझे लाइफ में लोगों ने इतना कुछ बोल दिया है, धुतकार दिया है, या आपके साथ कभी लाइफ में कुछ आप कोई ऐसा स्टेप ले लेते हो जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। जैसे आजकल यंगस्टर्स के साथ है, मान लो उन्होंने कोई एट अ वेरी यंग एज दे टुक अ स्टेप विच सोसाइटी डज नॉट अलाउ, और वो बात सोसाइटी में ओपन हो गई, खुल गई, देन दे फील वेरी बैड अबाउट इट। उनको बड़ा खराब लगता है कि यार ये तो लोग क्या सोचेंगे, तो आप बड़े डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ये सारे कैटलिस्ट हैं, ये एक्सपीरियंस भी आपका अंदर का है। ये बात मुझे पॉजिटिव और जो अच्छाई और हैप्पीनेस की स्थिति थी ना, उससे मुझे समझ आई कि यार इस केस में भी मैं हैप्पी रहता हूं और दूसरे केस में मैं परेशान हो जाता हूं। बट हकीकत क्या है कि दोनों केस में जो हो रहा है, जो आदमी इंपैक्ट में है, जो उस इंपैक्ट में जो आदमी है वो मैं खुद हूं, और उसकी जो सोर्स है वो भी मैं खुद हूं। अब उस सोर्स को मुझे मैनेज करना आना चाहिए, यानी कि अगर मैंने खुद को मैनेज कर लिया तो मैं इन मेंटल एलिमेंट से उभर सकता हूं बड़े आसानी से। तो वो कैसे करना है, वो मैं आपको बड़ा छोटा सा टूल बताता हूं। तो जब मेरे साथ ये ऐसा हुआ एनडीए वाला, तो सेम मेरे साथ फील हुआ। सो देन आई रियलाइज दिस, व्हाट आई रियलाइज दिस थिंग ओनली, कि यार जब मैं खुश होता हूं तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं परेशान होता हूं ये भी मेरा खुद का है। बट हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं अपने आप को तो चला नहीं रहा, ये चीजें मुझे चला रही हैं। तो उस समय क्या हुआ, मेरे पास एक नया रीजन और एक नया मिशन आ गया, यानी कि मेरे को एक नया चैलेंज मिल गया अपने आप से, और उस चैलेंज को मैं प्रूव करके अपने आप को ये प्रूव करना चाहता था कि शीशे के सामने खड़े होकर के मैं अपने आप को बता सकूं कि आई एम माई ओन मास्टर, मैं अपना मास्टर हूं। आई लीड माई सेल्फ, मैं अपने आप को लीड करता हूं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, आप किसी भी चीज, कोई भी चीज, अच्छी खराब सही गलत कोई भी चीज है, उसको कहीं पर भी हर जगह पर सही गलत अच्छे खराब की कैटेगरी से अपने आप को हटा लो। अच्छे खराब और सही गलत की कैटेगरी से अपने आप को हटाने का क्या मतलब है, उससे अपने आप को हटाने का ये मतलब है, अब सबसे इंपॉर्टेंट समझो, जब मैं बोल रहा हूं कि सही और अच्छे गलत से अपने आप को हटा लो, तो सबसे पहले तो अपने आप को सही गलत और अच्छे और खराब
से अपने आप को इस बाउंड्री से दूर कर लो। और इस बाउंड्री से अपने आप को दूर कैसे कर लोगे, या इसका क्या मतलब है, उसका बड़ा सिंपल सा मतलब है जो मैं अपने पुराने एपिसोड में भी, पुराने दूसरी वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि प्लीज डोंट बी जजमेंटल। ठीक है, जजमेंट मत पास करो, ओपिनियनिस्टिक मत हो, क्योंकि जजमेंटल हो गए तो सही गलत की बाउंड्री, अच्छे गलत की बाउंड्री आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आदमी कहता है कि जी मैं सोसाइटी में रहता हूं, ये कैसे ना अप्लाई हो। तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो मेरे को अपने खुद के लिए एक मिशन मिल गया, और खुद को जब मुझे मिशन मिल गया तो आप सबको भी मिल सकता है। मैं कोई बहुत सुपरमैन नहीं हूं, या मैं कोई आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन, मैं भी एक बड़ा आम इंसान हूं। जब मैं कर सकता हूं तो क्यों नहीं दूसरे यंगस्टर्स और दूसरे यूथ और हर एक इंसान कर सकता है। वो ये है कि सेम सोच मेरे में भी आई कि यार सोसाइटी में सही गलत बात होती है, बट मेरे पास एक मिशन था, और वो मिशन अब आप सबको बनाना है अपना। वो क्या? वो ये, जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ, आर यू द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ? क्या आपका कंट्रोल आपके हाथ में है? डू यू हैव द की ऑफ योर ओन सेल्फ? क्या आपकी अपनी चाबी अपने हाथ में है, या वो भी आपके हाथ में नहीं है? ट्रस्ट मी, अगर आप इस बात को 2-3 बारी बड़ी गहराई से सोचोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप इस बात पे इतने गहराई में चले जाओगे कि यार बात तो ठीक है, मेरा कंट्रोल ही अगर मेरे हाथ में नहीं है तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? What could be the biggest tragedy if I do not have my own control? ये थॉट विच इज एक्चुअली अ रियलिटी, इसने मुझे इस मिशन को दे दिया। और इस मिशन के बाद हुआ क्या? इस मिशन के बाद जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं, और वही आपके लिए भी टूल का काम करेगा। इस मिशन के बाद ये हुआ कि मैं जो भी काम अपनी लाइफ में करता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क, कोई इनिशिएटिव हो, कुछ भी हो, जो भी मैं करता हूं, मैं फुल्ली इन्वॉल्व और जील से करता हूं, मगर मैं उसमें कभी इंडल्ज नहीं होता। बड़ा ध्यान से समझना, इन्वॉल्व होना और इंडल्ज होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं कोई भी काम करता हूं, आई ऑलवेज रिमेन फुल्ली इन्वॉल्व इनटू इट, एज आई से टू एवरीवन। फुल्ली इन्वॉल्वमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि फोकस तभी बनेगा, देन ओनली यू कैन एंजॉय दैट थिंग, मजा तभी आएगा और तभी वो अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी। बट आई एम नेवर इंडल्ज इनटू इट। इंडल्ज करने का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ का सब कुछ, या अपनी एक्सपीरियंस जो खुशी का है, डिप्रेशन का है, दुख का है, या और कितने भी आपकी इमोशंस है, उन सबकी चाबी आपने अपने हाथ में नहीं, उस पर्टिकुलर चीज में लगा दी जिसमें आप इंडल्ज हो गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब आप एक लव रिलेशनशिप में होते हो तो आप उसमें इन्वॉल्व होने के साथ साथ इतने इंडल्ज हो जाते हो उन इमोशंस के अंदर, या उस बॉडी सेंसेशन में इतने इंडल्ज हो जाते हो कि अगर वो गलती से ब्रेक ऑफ हो जाता है तो वो आपको इतनी प्रॉब्लम करती है कि वो आपको डिप्रेस स्टेट में डाल देती है, बिकॉज यू आर इंडल्ज्ड इनटू इट। क्योंकि आपने ऐसा मान लिया है, जो कि हकीकत नहीं है, कि आपकी खुशी और परेशानी की सोर्स वो रिलेशनशिप थी या वो करियर था। बट द फैक्ट इज, ये आपकी सोच है, आपने अपनी सेल्फ परसेप्शन बनाई है, बट है नहीं। हकीकत ये है, चाहे आप उसमें इन्वॉल्व हो तो खुशी भी यहीं से है और परेशानी भी यहीं से है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपका अपना है। तो अगर ये आप मिशन और ये अगर आपने भी चैलेंज अपने सामने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि रियलिटी है, जो कि बहुत सारे लोग लाइफ में रिसेप्टिव ना होने की वजह से इस चीज को रियलाइज नहीं करते, बट अगर अभी मेरे इसको सुनने के बाद थोड़ा सा अगर आप गहराई में सोचोगे तो यू विल रियलाइज दिस थिंग कि यस दिस इज अ फैक्ट कि हम लोगों के पास अपना चार्ज ही नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जब हमारे पिताजी डांटते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, या हमें खराब लगने लग जाता है, या वो हमारे लिए बुरे बन जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, बड़ी बारी होता है कि मेरे जो फादर हैं, दो आई कॉल हिम अ बडी, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, बट एट टाइम्स हो सकता है कि मेरा लाइफ का परसेप्शन चीजों का अलग है, उनका अलग है। हमारी भी कभी डिस्कशन हो जाती है, थोड़ी सी एग्रेसिव डिस्कशन हो जाती है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं जजमेंटल हो गया या मेरा एक्सपीरियंस खराब हो गया, वो खराब है ना, बिल्कुल भी नहीं।
Why? Because the fact is, experience of something good and bad और एक्सपीरियंस अच्छा या खराब मेरा अपना है और वो मेरा ही रहेगा। और सिंपल सी बात है, आई ऑलवेज फील लाइक बीइंग हैप्पी, मुझे खुश रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को इसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कराता हूं, अपने आप को इसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कराता हूं जहां पर मेरी फीलिंग मेंटल वेलबींग की हो। अगर इस पर्टिकुलर टूल को आपने अपना लिया तो आई कैन गारंटी यू कि if you start being involved, fully involved with things, but don't indulge with them, I can guarantee you, you will have 110% mental well-being। और अगर 110% mental well-being आ गई तो मेरी गारंटी लिख लो कि physical well-being आपके लिए छोटा सा खेल बन जाएगा। Irrespective of the fact, अगर आपको कोई शायद भगवान ना करे कि बचपन से ही कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, if you are specially abled, if you are physically challenged, then also वो जो physical challenge है ना, वो तुम्हारे लिए बड़ा ही कहते हैं ना कि negligible काम करेगा, उसका कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। मेरे फर्स्ट एपिसोड को भी अगर याद करोगे, जो सुबह उठने वाली मैंने बात करी थी, अगर ध्यान से समझो, उसमें मैंने जो आपको टूल दिया था कि सुबह एक रिकॉर्डिंग लगा लो, और रिकॉर्डिंग में क्या बोलते थे आप कि अरे भाई तू जिंदगी में कुछ करना चाहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, पहले उठ के तो दिखा, भाग के तो दिखा, तब मानूंगा। ये मैंने आपको टूल दिया था। तो ये भी क्या है, ये आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को टैप करने का एक तरीका था। सो द मोमेंट यू टेक चार्ज ऑफ योर मेंटल वेलबींग, for which the way is be fully involved into it, because it is required to take it to a zenith, but don't indulge into it. If you take a charge of your well-being, your mental well-being, which means अगर आपने अपना चार्ज ले लिया, definitely the success will be there, and definitely ये जो less ordinary dimension है endurance की, ये आपके अंदर निखरती चली जाएगी, क्योंकि mental well-being से physical well-being अपने आप उभरनी शुरू हो जाएगी, which will totally in totality will going to increase and invoke endurance within your own self. तो आशा करता हूं कि you all will start working on your endurance, and it is my wish and Almighty's blessing that all the human beings on this planet, and specifically all the youth, they must have a great mental well-being. तो एक नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नई और लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन के साथ, कि क्या है वो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसको कैसे इन्वोक करना है। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी लाइव वंस अगेन, एंड आई रियली लव यू ऑल। और अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।